The other perspective to the story also, Randhir S. Suman, deceased lawyer, joins us now here at NewsX. Thanks very much for joining us, Mr. Randhir Suman. What do you have to say about your client's death and the way police has been conducting this entire, the way it's been keeping Mujahid so far in its custody? असल में आरटी निवेश कमीशन की रिपोर्ट लागू होते ही आपके 42 लोग आपके मुलजिम होते, जिसमें विक्रम सिंह, ब्रजलाल और आपके राजेश श्रीवास्तव, चिरंजीव नाथ सिन्हा, मनोज कुमार झा सहित 42 पुलिस अधिकारी जेल होते, जिसमें खालिद मुजाहिद और आपके तारिक कासमी आपके मुख्य गवाह होते। इस वजह से खालिद मुजाहिद को बहुत उच्च टेक्नोलॉजी से लैस होकर उनको हटा दिया गया और तारिक कासमी की भी जान को खतरा है। तो आप हमें ये कहना चाह रहे हैं इसके पीछे कोई साजिश है कि आप ये बयान करना चाह रहे हैं कि वाइटल एविडेंस को हटाने के लिए इनकी मौत हुई, उनको मारा गया? हाँ, मारा गया, निश्चित रूप से मारा गया, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी 16 दिसंबर 2007 को मड़ियाहू जिला जौनपुर से की गई थी और इस बात की जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो मड़ियाहू ने आपके लिखित दिया था कि इनको 16 दिसंबर 2007 को गिरफ्तार किया गया है, तो 22 दिसंबर 2007 को बरामदगी कैसे हो गई? आरटी निवेश कमीशन ने सीधे ये माना है कि आपकी गिरफ्तारी भी फर्जी है, बरामदगी भी फर्जी है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे पुलिस के उच्च अधिकारी मुलजिम है 302 और 120B के, और वही मुकदमा यहाँ बाराबंकी कोतवाली में दर्ज भी किया गया है। जी हमारे साथ रहिए रणधीर सुमन जी। Mr. Vikram Singh, coming back to you, how do you respond to Randhir Singh's charges, because he's clearly alleging that this has been a well thought of conspiracy and perhaps Mujahid could have been proven innocent, or for that matter he had vital clues to go against the charges against him? He is most welcome to level any allegations he chooses to. It is not in the interest of senior police officers or any law enforcement agencies to make any arrests or make false charges. Look, it is an allegation made by a hardened anti-national element against an upright police officers. It is their word against the other word. And now it has been referred to the CBI. The CBI will investigate. The Nimesh Ayog did not sit for a month or a couple of months. They sat for years together and everybody deposed before the Nimesh Commission. Had there been anything questionable, they would have certainly left their recommendations. Okay, let me bring in my studio guest here. Manisha, what do you make of this entire situation? You also heard former DSP really speaking here, DGP in fact of UP Police, Vikram Singh, and how he's refuted the charges of against police, and then the lawyer Randhir Suman saying that it could just have been a conspiracy. What do you make of it? No, I would like the upright police officer to explain how Khalid and Tariq were produced in a press conference on 22nd December, whereas they were abducted. Upright police officer to explain how Khalid and Tariq were produced in a press conference on 22nd December, whereas they were abducted almost a week ago. What was, the intervening period of illegal detention? How do they explain that? And now to, take the recourse to nationalism and anti-national in order to subvert the whole process of law, saying that he was he's already proclaiming him guilty on national television channel, whereas the fact is that he's charge sheeted. Yes, he's charge sheeted, but that doesn't mean that he's convicted. And also the fact that the UP courts quashed the plea by the UP government is because of the weak way in which it was framed. It was, the plea taken was under section 321, which was to withdraw the case in public interest. That is not the point. The R.D. Nimesh Commission clearly says that there were procedural flaws. It suspects the police story. It clearly indicts, and it casts aspersions on the police story in the case of arrest of Khalid and Tariq. And so those should have been the grounds for withdrawal of the case. It was a deliberate attempt on the part of the UP government to present a weak case, and therefore the case was, quashed. And also the fact that in the application before the court, 2 private applications against the quashing of the case were allowed, which were heard by the court. One by, an NGO, and another by
another advocate. So these were allowed without Mr. Suman and Shoaib Saab and other advocates who were fighting on behalf of Tariq and Mujahid to be able to argue that. Suggesting, what was the whole idea behind perhaps trying to bring this, if at all, as you're suggesting, innocent person to books? Why did the police do that? See, we've seen, for the past several years, we've seen innocents being framed falsely in cases of terrorism. This is not like a wonder which has happened only in UP in one case. Last year we brought out a documentation on cases in Delhi, where we found 16 cases of innocents being, 16 cases, a lot more people, but 16 cases in which people were falsely framed in cases of terrorism. Because they're under pressure to act. Under pressure to act sometimes, but also for very cynical, selfish reasons of promotions, of, there's a whole political economy to it, right? So it's not simply, it's not out of this, the realm of the possible that, cases like these happen. All right, let me bring in my This is funeral procession of Khalid Mujahid, who died in police custody on 18th May 2013. People are making angry slogans against the police and government. Mujahid is the second Muslim youth in 1 year to be killed in judicial custody even before conviction. In June 2012, Qatil Siddiqui was killed in Pune jail in Maharashtra state. He was not even charge-sheeted. The custodial killing of Khalid Mujahid has sparked protests in several parts of India. Mujahid had been in jail since December 2007. On 18th May 2013, he was taken from Lucknow jail to Faizabad in police custody for a court hearing. His counsel, who met him at Faizabad court, says he was healthy and fit, had no signs of sickness, but on return way to Lucknow jail, he fell ill in police van and died mysteriously at Barabanki hospital. 18 मई 2013 को फैजाबाद कचहरी में उनका मुकदमा कर लिया था जिस दिन का ये कत्ल हुआ। बोर्ड में जब पेश किए गए थे तो बिल्कुल ठीक थे, किसी तरह से इनको कोई तकलीफ नहीं थी। बात भी हुई हमारी, कोई तकलीफ नहीं बताया था और हाल चाल पूछने का फर्क भी बताया था, बिल्कुल ठीक है, देखने में भी ठीक। 3:20 बजे तक तो है हमारी बात होती रही है उनसे, सिर्फ मुझसे नहीं, जितने उनके वकील थे, मैं था, जमाल अहमद साहब थे, अबू हाशिम थे, तीनों से बात होती रही और बिल्कुल ठीक थी। Within minutes of his death, police and government said he died natural death, then said he died of heat stroke, and once again, changing their stand, they said he died of heart attack. But Mujahid's body had clear marks to show he did not die a natural death. Mujahid's uncle says he was killed by police. खालिद की मौत की जो रिपोर्ट आई है और जो कुछ हम लोगों ने अपनी आंख से देखा है, मसलन मैं जब गया पोस्टमार्टम रूम में जहां लाश रखी हुई थी और मैंने उनसे ये कहा कि भाई पोस्टमार्टम से पहले हम लोग देखना चाहते हैं और हम वो सीडी आपको देंगे भी, तो वहां पर देखा कि गर्दन मरोड़ी हुई है, बाएं साइड, नाक से खून बह रहा है, कान के पास से खून बह रहा है और ये चेहरा बहुत फूला हुआ है और स्याह है, जबकि इनका रंग जो है फितरी तौर पर बहुत ही गोरा रंग था खालिद का, लेकिन रंग बिल्कुल चेंज है। और नीचे जब उतारा गया तो देख क्या रहे हैं कि शर्ट पहने हुए हैं और लोअर पहने हुए हैं। अब जाहिर है कि लोअर पहन करके कोर्ट में आदमी नहीं जा सकता। हमारे वकीलों ने जो बात बताई वो तो ये बताई कि कुर्ते पैजामे में थे, ये तारिक ने भी कहा, लेकिन हैरत की बात यह है कि वो कुर्ता पैजामा कहाँ गया ये मुझे नहीं दिखलाया गया। खालिद मुजाहिद की मौत नहीं हुई है, उसका कत्ल किया गया है
और ये कत्ल बिल्कुल उस तर्ज पे किया गया है जिस तर्ज पे फ़लस्तीनियों को, बेगुनाह फ़लस्तीनियों को इस्राएली खुफिया एजेंसी को लोग मारते हैं। उनके बदन पे ऐसे निशानात हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि उनको जहर दिया गया है। कुछ तशद्दुद भी उनके साथ किया गया है, चोटों के भी निशान हैं। The government-appointed R.D. Nimesh Commission had found the arrest of Khalid Mujahid and Azamgarh native Tariq Kasmi as illegal and fake. Commission had recommended action against guilty police officers. Family and rights groups were demanding release of the two youths. Khalid Mujahid was kidnapped by a team of plainclothes sleuths of a special task force of Uttar Pradesh on 16th December 2007. 16 दिसंबर 7 को खालिद मुजाहिद बाजार गए हुए थे और शाम को 6 साढ़े 6 बजे के दरमियान यहाँ बाजार से उठा लिया गया। पब्लिक दौड़ पड़ी, लेकिन उन्होंने असलहा लहराया और असलहा लहराते हुए गाड़ी में बैठा कर लेकर के चले गए। मैं उस वक्त तो रायबरेली से इलाहाबाद आ रहा था, तो मुझे वही रास्ते ही में इत्तला मिली कि ऐसा हुआ है। मैंने कोतवाल को यहाँ पर फ़ोन किया कि क्या मामला हो रहा है, क्यों ले जाया गया है। तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, उसको कस्दन यहाँ से हटाया गया था, जैसा बाद में अंदाज़ा लगा। वो मुसलमान कोतवाल था। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ वैसे ही यहाँ पर FIR दर्ज कराने की कोशिश हुई, लेकिन इन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। अलबत्ता रात ही रात मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को हमने फैक्स को दिया, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। जहाँ जहाँ मिल सकता था फैक्स करने का मौका, वहाँ किया मैंने, और सुबह मैं यहाँ पर आ गया। तो अक़लियती कमीशन को भी उसी वक्त भेज चुका था। Tariq Kasmi was picked in similar way on 12th December 2007 in Azamgarh. पोस्ट से 11:15 बजे के लगभग अपनी दुकान से निकले और चेक पोस्ट पे टेलीफोन पे किसी से बात किया, उसके बाद जाने लगे। तो थोड़ी दूर मोहम्मदपुर गांव के सामने रोड पे टाटा सुमो पे सवार आए और उन्होंने कहा कि हकीम साहब रुक जाए, हमारे चचा को देख लें। एक दिन पहले वही लोग आकर के इनसे दुकान पे ही बात किए थे कि हमारे चचा बीमार रहते हैं, आपका समय क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे तक दवाखाने पे रहता हूँ। तो वो लोग दूसरे दिन आए, जब यहाँ नहीं पाए तो फिर 2 बार इनके मोबाइल पे फ़ोन किया। तो जब वो नंबर इन्होंने देखा मोबाइल, तो ये लोग पीछे गाड़ी से ही थे, आगे वो मोटरसाइकिल से थे और पीछे से ये लोग थे। तो इन लोगों ने कहा कि बस यही है, साइड में गाड़ी लगवाया और कहा कि हमारे चाचा को देख लीजिए। तब तक 4-5 लोग निकले उसमें से, अच्छे सेहतमंद तंदुरुस्त लोग, और उनको ज़बरदस्ती उठा के गाड़ी में डालने लगे। बल्कि कुछ औरतें वहाँ थीं, उन्होंने कहा कि अरे जो है क्या कर रहे हैं। तो कहा कि घर से गुस्सा होके जा रहे हैं, इसलिए इनको घर वापस ले जा रहे हैं। फिर यहाँ से इनको लेकर के बंद करके गाड़ी में फरिया होते हुए और लेकर के बनारस चले गए। People protested in Azamgarh and Jaunpur against the illegal pickings. मुझे याद है 12 दिसंबर 2007 को 12 और 1 के दरमियान दिन में हकीम तारिक को निहारा निक्सराय चेक पोस्ट है, ईश्वरपुर और महमूदपुर गांव बिल्कुल लगे हुए हैं, वहीं से गिरफ्तार किया गया था। और पहले जो खबर आई वो ये कि हकीम तारिक घर से नाराज थे और उनको कुछ लोग आए वहाँ से ज़बरदस्ती घर वापस ले गए। लेकिन अगले ही दिन
ये पता चला कि नहीं, जो लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं वो एसटीएफ के लोगों ने वहाँ जब लोग जमा हो गए थे उनको उठाते वक्त, तो ये बहाना बनाया था कि हम इनको घर वापस ले जा रहे हैं। धोखा दिया था एक तरह से लोगों को, और फिर उठा के वो बनारस की तरफ लेके चले गए थे। यानी 13 दिसंबर को ही हम लोगों ने ये तय कर लिया, उस वक्त हम लोग नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए थे। 13 ही तारीख को हम लोगों ने ये तय कर लिया कि अब इसके खिलाफ आंदोलन करना ज़रूरी है। ये एक बड़ी वारदात है, इस तरह से उठा के ले जाया गया है, तो कोई ना कोई इसके पीछे बड़ा राज है। और 14 तारीख से ये आंदोलन शुरू हो गया। लगातार आजमगढ़ शहर में, सरायमीर, दूसरी जगहों पर लोगों को मोबिलाइज किया गया, धरना दिया गया, मुजाहरा हुआ, और ये सिलसिला लगातार चलता रहा। जब 20 तारीख तक यानी 18 और 19 की जो दरमियानी रात थी, उसमें हकीम तारिक के घर पे छापा पड़ा बाकायदा। उनकी किताबें, मोबाइल, ये सारी चीज़ें उठा के ले गए और सारे कागजात पे दस्तखत करवाए उनके घर। तो उस दिन ये बिल्कुल साफ हो गया कि ये एसटीएफ के लोग उठा के ले गए हैं। हालांकि शुबहा तो पहले ही से था, लेकिन उस दिन बिल्कुल वाज़ेह हो गया। और ये था कि अब तक उनको अरेस्ट दिखाया नहीं है, तो कहीं किसी फर्जी मुठभेड़ में मार न डालें। तो फौरन नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के जो यूथ के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, चौधरी चंद्रपाल सिंह, उन्होंने कहा कि मैं आत्मदाह की नोटिस देता हूं सरकार को कि अगर सरकार 22 दिसंबर 2007 तक इन दोनों को, हकीम तारिक और खालिद मुजाहिद को बरामद नहीं करती है, तो मैं उसी जगह आत्मदाह कर लूंगा जिस जगह से हकीम तारिक को उठाया गया है। मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी युवा प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मैंने लेटर लिखा था कि मौलाना तारिक कासमी 12 दिसंबर से गायब हैं और मौलाना खालिद मुजाहिद 16 दिसंबर से गायब हैं। इसलिए यहाँ के आजमगढ़ की पुलिस और जौनपुर की पुलिस से मैं परेशान हूँ, क्योंकि 2 बेगुनाह आलिम गायब हैं। इसलिए पुलिस ढूंढने में उन्हें नाकाम रही है। तो मैं 22 दिसंबर तक अगर मौलाना तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को अगर पुलिस कहीं से ढूंढकर पेश नहीं करती है, तो मैं 23 दिसंबर को कोटला मस्जिद के पास अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। इसका मैंने ऐलान किया था राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबको मैंने लेटर फैक्स किए थे। Police were forced to produce them, but with a concocted story. Police claimed to have arrested them with arms and ammunition at Barabanki railway station on 22nd December 2007. इन लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है 22 दिसंबर 2007 को सुबह रेलवे स्टेशन के पास से। उस समय इनके पास एसटीएफ ने डिकोनेटर, जिलेटिन राड और आरडीएक्स की बरामदगी दिखाई। First during 10-day illegal detention and then during police remands, Khalid Mujahid as well as Tariq Kasmi were exposed to brutal inhuman torture. Confessional statement about their involvement in serial blasts of 23rd November 2007 in court premises of Lucknow, Varanasi and Faizabad. 22 दिसंबर 2007 को बाराबंकी रेलवे स्टेशन पे आरडीएक्स डिटोनेटर के साथ जो है वो तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार करती है कि इनके पास से ये सब बरामद हुआ और मोबाइल्स वगैरह बरामद हुआ। और उनके ही स्टेटमेंट पे उनको इस मुकदमे में मुलजिम बनाया। लखनऊ में भी चूंकि कचहरी में उसी दिन ब्लास्ट हुआ था, लखनऊ में भी इनको मुलजिम बनाया, तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को। तो इस तरह से तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद के ऊपर 3 मुकदमे हुए, एक लखनऊ के ब्लास्ट का, एक फैजाबाद के ब्लास्ट का और आरडीएक्स की बरामदगी का कोतवाली बाराबंकी, यानी 3 मुकदमे का ट्रायल ये फेस कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन ये समझती है कि वो केस साबित नहीं कर पा रही है और एक गवाही पेश करने में एक साल लग गया है। गवाह नहीं ला करके ये लोग पेश करते थे। From the day one, families of Khalid Mujahid and Tariq Kasmi were not allowed by right-wing lawyers to hire lawyers to defend their sons.
The defense lawyers of Mujahid and Qasmi were beaten up several times. शुरू में वकीलों ने जिस तरह का माहौल यूपी में बनाया था, कोई शख्स भी मुकदमा लेने के लिए तैयार नहीं था, डर की वजह से। लेकिन सबसे पहले शोएब साहब आए सामने और लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद, इन तीनों जगहों पर मार खाने के बावजूद वो हमारे साथ खड़े रहे। फैजाबाद में 7 जून को मैंने पावर फाइल किया 15-20 लायर के साथ जो बाहर के आए हुए थे। तो 16 जून को 13 या 14 जून को 2008 को करीब 150 अधिवक्ताओं के साथ मंसूर इलाही उस समय सेक्रेटरी और संजीव दुबे मेरे तख्ते को घेर लिया, मेरी सीट को, मेरा तख्ता और कुर्सी उठा ले गए और मुझको डिससजेस्ट कर दिया गया। पहली घटना ये किया इन्होंने। दोबारा घटना जब ये हुआ कि 20 तारीख को खालिद मुजाहिद की मौत के बाद एक जबरदस्त मुसलमानों का रोष था, उसमें हिंदू भी शामिल थे। एक शांतिपूर्ण ढंग से मार्च निकला, कमिश्नर के कार्यालय तक गया और हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उसमें कुछ लोगों ने, चूंकि बार एसोसिएशन के उन कम्युनल एलिमेंट्स ने, जो चाहे डॉक्टर इरफान पकड़ के जब आए तो उनको उनके पुलिस कस्टडी में मारा गया। जब तारिक कासमी वगैरह आए सीजीएम की अदालत में तो उनको मारा गया। तो जनता में एक रोष था और जनता ने बार एसोसिएशन फैजाबाद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारा लगाए। उसको इन लोगों ने बुरा माना और आनन फानन में 21 तारीख को मीटिंग करके और हमारा तख्ता और कुर्सी तोड़ दिया, उठा ले गए। नदीम सिद्दीकी का तख्ता उठा ले गए और शकीलुर रहमान का तख्ता उठा ले गए और सलीम को डीआईजी के सामने ही, ऑफिस के सामने इनके हुजूम ने उनको बहुत मारा, उनको चोटें आई, हॉस्पिटलाइज भी हो। और हम तीनों को भी ये खोज रहे थे। इत्तेफाक है कि हम तीनों मिले नहीं तो हम लोगों को तो जान से ही मार डालती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इनके टारगेट में मैं ही हूँ, क्योंकि मैं बड़ी मजबूती के साथ खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी और इनका चारों का मुकदमा लड़ रहा हूँ। On 20th May 2013 also, the counsels of Mujahid were beaten by right-wing lawyers in Faizabad for participating in a protest march against the custodial death of Mujahid. एक प्रस्ताव आया जिसकी कापी हम लोगों को नहीं दी गई, न हमको दी गई, न नदीम को दी गई, न शकील को दी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई और बिना इन्फॉर्मेशन के कोई मीटिंग बुला ली गई और उसमें मीटिंग ख़त्म होने के बाद ही हम लोगों का तख्ता तोड़ दिया गया, बेंच तोड़ दी गई और हम लोग सब लोग जान बचा के जितना भागे हम सड़क पे आ गए थे। कमिश्नरी और डीआईजी के पास जो है इसी तरह ये लोग सामने पड़ गए, हमारा पीटे और काफ़ी चोटें आई। आज भी मतलब 9-10 दिन हो गया, चक्कर बराबर आ रहा है। गाँव तो ठीक हो गया किसी तरह से, लेकिन चक्कर अभी बराबर आ रहा है। In last 10 years, hundreds of Muslim youths have been picked in the name of terror. After Mujahid's custodial death, the group is holding indefinite dharna in front of the State Assembly in Lucknow. They demand arrest of the officers made accused in FIR filed by Mujahid's family and action on the recommendation of R.D. Nimesh Commission report. 6-7 साल से हम लोग लड़ रहे हैं सवाल को। इसमें ये हमारा सवाल है कि जो भी आतंकवाद के नाम पर जो कैद लड़के हैं उनको उनके जांच आयोग का गठन किया जाए, उनको छोड़ा जाए। दूसरा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और तीसरा, जो घटनाएं हुई उनकी जांच, क्योंकि बेसिकली अगर जो मेन कल्प्रिट्स नहीं पकड़े जाएंगे तो आतंकवाद का हम हिंदुस्तान से सफाई नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने जो कमीशन बैठाया है, वो मायावती गवर्नमेंट ने जो कमीशन बैठाया था उस समय, देखिए ये पूरा सवाल हम इसीलिए बार करते हैं, आतंकवाद का सवाल एक राजनीतिक सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर सवाल नहीं है, पॉलिसी मेकिंग का सवाल है। Even 2 weeks after the custodial death of Khalid Mujahid,
the state government of Uttar Pradesh has not taken action against the accused police officers. Even 9 months after the submission of RD Nimej Commission report, Chief Minister Akhilesh Yadav has not acted on its recommendations. This is not just the issue of a Khalid Mujahid or Uttar Pradesh. Religious minorities across India are feeling insecure. Whether it is Kandhamal of Christian killings or Gujarat pogrom of Muslim massacres, Batla House encounter of Delhi or custodial killing of Khalid Mujahid in Uttar Pradesh, victim minorities have not got justice. Will they ever get? It is a question for world's largest democracy, India, to answer.